تھوڑا آواز کھول دینا، دور سے کیچ کرے، دور سے۔ چھویں امام تاجدار ولایت فرمائندہ جڑا بندہ ساری ذات تے کھلے دل نال درود بھیجے اس انسان دے رزق وچ کل ہمیں کمی نہیں آندی۔ مل کے درود پاک پڑھا، اللہم صلی علی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بے ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب۔ بلند صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی۔ حمد اس خالق کے ازل کے لیے ہے جو ہر طرح سے لائق حمد ہے۔ دادا استاد شہید ملت جعفریہ سید محسن نقوی صاحب علی اللہ مقامہ و نور اللہ مرکزہ کا خطبہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے لگا ہوں۔ حمد اس خالق کے ازل کے لیے ہے جو ہر طرح سے لائق حمد ہے۔ درود و سلام اللہ کے ان مصطفیٰ و مرتضیٰ و مجتبیٰ جیسی پاک ہستیوں کے لیے جنہوں نے وحشی کو انسان، انسان کو مسلمان، مسلمان کو سلمان بنایا۔ آباد رہیں۔ بیزر کو دیکھا تو ابو ذر بنایا، بیداد کو دیکھا تو مقداد بنایا، مجبور کو دیکھا تو مختار بنایا۔ کروڑوں درود و سلام ان ہستیوں پر جنہوں نے کنکر کو نوازا تو در بنایا، آسی کو نوازا تو ہر بنایا۔ ہمیشہ ہر مسلمان کبھی نہ کبھی بیٹھک میں، کبھی نہ کبھی سفر میں، کبھی نہ کبھی بزم میں، کبھی نہ کبھی کنج میں، کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں مقروض ہے آل محمد کے احسانات۔ یہ منت کر رہا ہوں جو جتنا بڑا مقروض ہے آل محمد کے احسانات کا اتنی بلند صلوات تلاوت فرمائے۔ اللہ اجازت ہے جی نوکری کا آغاز کیا جائے۔ پہنے جسے بھی اس کے پہننے کا شوق ہے، توجہ ہے نا سرکار؟ تو مشکل بات میں نے کی نہیں ہے، اردو پڑھنے والا بندہ ہوں، ان علاقوں میں بڑا مختصر آتے ہیں، عابد بھائی جانتے ہیں، تو 2-3 گھر ہیں جہاں پر مخصوص حاضری دینی ہوتی ہے، واجب سمجھتے ہیں۔ ایسی بات ہے، آپ بہتر جانتے ہیں مجھ سے۔ جعفر بھائی کی موجودگی میں بات کرنے لگا ہوں، سورج کو چراغ دکھانے والی بات ہے۔ آل محمد کا سب سے چھوٹا سا نوکر ہونے کی حیثیت سے پہلی بات کی ہے، پہنے جسے بھی اس کے پہننے کا شوق ہے۔ سوال تو بنتا ہے نا یہاں پر، آپ بات کر رہے ہیں پہنے جسے بھی اس کے پہننے کا شوق ہے، وہ کیا چیز ہے؟ بات دل میں اترے تو داد دیجئے گا، آپ کا عقیدہ میرے عقیدے سے میچ ہو جائے تو بولیے گا۔ پہنے جسے بھی اس کے پہننے کا شوق ہے، مولا علی کی دشمنی لعنت کا توق ہے۔ اللہ اکبر۔ جو بیدار بیٹھے ہیں یار، جو خریدار بن کے آئے بیٹھے ہیں، حیدری سبحان آپ جی ہیں۔ ایک بات ذہن میں آگے کرتا چلا جاؤں، ضائع نہ کر اپنے الفاظ کسی کے لیے۔ یہ بات آپ کے لیے نہیں ہے، یہ بات میں نے جو کیا وہ ضائع ہوئی نہیں ہے۔ جہاں علی والے بیٹھے ہوں علی کی بات کرو، ضائع نہیں ہوتی۔ ضائع نہ کر اپنے الفاظ کسی کے لیے، خاموش رہ کر دیکھ تجھے سمجھتا کون ہے۔ خاموش رہ کر دیکھ تجھے سمجھتا کون ہے۔ آل محمد سب سے چھوٹا سا نوکر ہوں۔ پہلی بات میں نے کیا، آپ نے بڑی خوبصورت داد بھی تھی، دعا بھی تھی۔ طویل سفر کر کے آیا ہوں تو آپ کے چہروں کی زیارت میرے نصیب میں تھی، ہو گئی، یہ میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ 10 محرم 61 ہجری کربلا کا میدان، تو وہ جو ہے نا سرکار، 10 محرم 61 ہجری کربلا کا میدان۔ اچھا، میدان کربلا میں جعفر بھائی، میدان کربلا میں 71 نے جنگ لڑی، اصغر نے مسکرا کے جیتی۔ جو خریدار آئے بیٹھے ہیں، جو خریدار آئے بیٹھے ہیں، پڑھنا مجھے ایسے ہی آتا ہے، پڑھنا مجھے ایسے ہی آتا ہے۔ میدان کربلا میں 71 نے جنگ لڑی، اصغر نے مسکرا کے جیتی۔ اصغر نے مسکرا کے، اصغر کوئی عیسیٰ تو نہیں گود میں بولے، اردو ہے تھوڑی سمجھنی ہے، تھوڑی مشکل ہے۔ اصغر کوئی عیسیٰ تو نہیں گود میں بولے، میدان میں بولے گا کہ آخر یہ علی ہے۔
मैदान में बोलेगा कि आखिर ये अली है। अच्छा, जिसने सहने ततहीर में 6 महीने गुजारे हों, जिसने सहने ततहीर में 6 महीने गुजारे हों, उसके फजाइल की ना तो कोई हद है ना तो कोई इंतहा है। ये जुड़े हुए हाथ हैं। उसके फजाइल की ना तो कोई हद है ना तो कोई इंतहा है। उसके फजाइल मैं क्या बयान करूं। छोटा है अली के लिए, हमारे लिए बाबुल हवाइज है, हमारे लिए बाबुल हवाइज है। एक मिसरा है जो नूरानी कलम से लिखा जाए तो हक अदा ना हो। फजाइल उनके मैं बयान नहीं कर सकता। एक मिसरा है जो नूरानी कलम से लिखो हक अदा ना हो। जब मौला अली असगर बादशाह दुनिया में तशरीफ लाए, इमाम हुसैन ने बेटे को उठाया, बेटे का मुंह चूम के फरमाने लगे, बस यजीद की मौत में सिर्फ 6 महीने बाकी हैं। यजीद की मौत में सिर्फ 6 महीने बाकी हैं। जाबिर भाई, एक जुमला मेरे ज़हन में आ गया। उलमा ज़ाकिरीन वाइज पढ़ते रहते हैं कि करबला का वाक़या 1400 साल हो गए, 1400 साल हो गए। लेकिन 1400 साल हो गए, उलमा पढ़ते आए, वाइज़ीन पढ़ते आए, ज़ाकिर पढ़ते आए, किसी ने शहजादा अली असगर का एक तबस्सुम अभी तक वाज़े नहीं किया। 1400 साल हो गए, एक तबस्सुम अभी तक भी वाज़े नहीं हुआ। जुर्रत का अनोखा ही अलमदार है असगर, जुर्रत का अनोखा ही अलमदार है असगर, मैदान के लिए गोद में तैयार है असगर। ये जो ताकत का नशा है, अगर मौला अली असगर बादशाह पढ़ूं तो मैं तकरीबन 2 घंटे पढ़ सकता हूं। अल मुख्तसर करने लगा। 10 मुहर्रम 61 हिजरी करबला का मैदान, आपके अकीदे की बात करने लगा। मुझे दात ना भी दे तो मैं राजी हूं, मेरा अपना घर है। भाई मून शाह जी, भाई हामिद शाह जी का हुक्म था, हुक्म की तामील हो गई, आपने खूबसूरत दात दे दी, मेरे आने का मकसद पूरा हो गया। आपके अकीदे की बात हो तो फिर बोलिएगा, अगर अकीदे की बात ना हो तो ना बोलिएगा। 10 मुहर्रम 61 हिजरी करबला का मैदान, इतना कोई नूर था हुसैन के चेहरे पर। अब भाई दोपहर का वक्त था ना, दोपहर का 6 घंटे, इतना कोई नूर था हुसैन के चेहरे पर कि अल्लाह ने भी फकत हुसैन को देखा। अल्लाह अकबर यार, जो बेदार बैठे हैं, जो खरीदार बन के आए बैठे हैं, हैदरी, हाथ उठा के बोलो हैदरी। इतना कोई नूर था हुसैन के चेहरे पर कि अल्लाह ने भी 6 घंटे फकत हुसैन को देखा। मेरे दादा उस्ताद शहीद मिल्लत जाफरिया जनाब सैयद मोहसिन नकवी साहब अल्लाहु मकामहु व नव्वरल्लाहु मरकदहु पढ़ते रहते थे, मजीद दर्जात बुलंद हो। फरमाते थे, जब भी मैं नामे हुसैन लिखता हूँ, आबिद भाई मैं जोर भी लगा सकता हूँ, आप इतनी खूबसूरत दाद दे रहे हैं तो मेरा जोर लगाना बनता ही नहीं है। मैं लफ्ज पढ़ता हूँ, लफ्जों का खरीदार हूँ। नामे हुसैन जब भी लिखता हूँ, जब भी मैं नामे हुसैन लिखता हूं तो मेरे जहन में ख्याल ये आता है, कागज छोटा है नाम बड़ा, कागज छोटा है नाम बड़ा। हुसैन लिखने के लिए मुझे किन किन चीजों की जरूरत होनी चाहिए। फरमाते, सबा का सीना बने सफीना, जरा तबीयत रवां दवा हो। अगर आप इन मिसरों पर नहीं बोलेंगे तो मैं फिर कहाँ जाके पढ़ूं। मेरा अपना घर है, मैंने पहले भी बोला, मुझे दाद ना भी दे तो मैं राजी हूँ, लेकिन मैं दाद ले भी लूंगा आखिरी मिसरों पर। सबा का सीना बने सफीना, जरा तबीयत रवां दवा हो, हवा में खुशबू के दायरे हो, खला में किरणों का साहिबा हो, जमी जमर्रद उगल रही हो, गुलाब गुलनार आसमां हो, हरे कोमपल कवल उछाले, कली कली में कुंज कुन फिका हो। फरमाते, चमन के सीने पे फखले गुल का निशाब अंदाज कह कशा हो। फरमाते, दरूद की अंजमन सजाऊं, दहन में जिब्राइल की ज़बां हो। फरमाते, बिछा के मसनद बशारतों की, दिलों में इदराक मेहरबा हो। फरमाते, ये सब कुछ मिले तो मदहे शहनशाहे मशरकैन लिखूं, हया की तख्ती पे अपनी पलकों से फिर मैं लफ्ज़े हुसैन लिखूं। ये सब कुछ मिले तो मदहे शहनशाहे मशरकैन लिखूं, हया की तख्ती पे अपनी पलकों से फिर मैं लफ्ज़े हुसैन लिखूं। ये जो ताकत का नशा है ना, इंसान को फिरौन बना देता है। ताकत का नशा है, इंसान को फिरौन बना देता है।
मलाउन ताकत के नशे में आके आपके मेरे मुर्शिद हुसैन बादशाह से कहने लगा, मेरे आगे बैयत कर, मेरे आगे बैयत कर। खत वाला आया हुसैन बादशाह के पास, हुसैन बादशाह के आगे खड़ा होकर फरमाने लगा, मौला हुसैन, मलाउन कहते आप उसके आगे बैयत करें, आप उसके आगे बैयत करें। फरमाया उससे पूछ उसके पास क्या है, उसने कहा मेरे पास सब कुछ है। अगला मिसरा सुनिएगा, दाद ना भी दे मैं राजी। आपके मेरे मुर्शिद हुसैन बादशाह ने खत लेके आने वाले को जवाब दिया, फरमा उसके जाक को बता दो ये तेरा सब कुछ मेरे कुछ नहीं के सामने कुछ भी नहीं है, ये तेरा सब कुछ मेरे कुछ नहीं के सामने कुछ भी नहीं है। पूछा गया फिर बता तेरे पास क्या है, उसका तख्त मेरे पास, ताज मेरे पास, शाही मेरे पास, बादशाही मेरे पास। वो गिनवाते गिनवाते खामोश हुआ। आपके मेरे मुर्शिद हुसैन बादशाह ने फिर पूछा तेरे पास क्या है, उसका तख्त मेरे पास, ताज मेरे पास, शाही मेरे पास, बादशाही मेरे पास, इज्जत बेचने वाले मेरे पास, ज़मीर बेचने वाले मेरे पास, कलम बेचने वाले मेरे पास, अकीदा बेचने वाले मेरे पास, ज़बान बेचने वाले मेरे पास, कान बेचने वाले मेरे पास, नाक बेचने वाले मेरे पास, आंखें बेचने वाले मेरे पास। आपके मेरे मुर्शिद हुसैन बादशाह के चेहरे पे हल्का सा जलाल नमूदार हुआ। आपके मेरे मुर्शिद हुसैन बादशाह ने फरमाया, और तुझे शर्म नहीं आती, इतना कुछ होने के बावजूद मांग फिर भी हुसैन से रहा है। और तुझे शर्म नहीं आती, इतना कुछ होने के बावजूद मांग तो फिर भी हुसैन से रहा है, मांग तो फिर भी हुसैन से रहा है। एक बात करता हूं, उसी पे तमाम करता हूं। विलायत अली के मिसरे हैं तो वो मैं यहाँ पढ़ना वाजिब समझता हूँ। आप इतना खूबसूरत बोल रहे हैं तो विलायत वाला मजमा है तो विलायत पढ़ना मेरे पर वाजिब है, वाजिब नहीं ओजिब है। यही मिसरे मैंने अपने इलाके में पढ़े। जनाब सैयद फरहान अली वारिस साहब मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में बात की। मुझे नहीं पता कितने बंदों ने दाद दी, कितने ने मुझे दुआ दी, सिर्फ दुआ लूंगा। विला के हाथ पे बैयत नमाज करती है। आबिद भाई ये मिसरे वो हैं जिससे मेरी वल्लाह बा खुदा कुछ पहचान बनी। विला के हाथ पे जो बंदा तय करके आया है मैंने दाद नहीं देनी, वो बंदा सर उठाए, अगले बंदे से मेरी बात है ही नहीं। विला के हाथ पे बैयत नमाज करती है, अली अमीर की मिदहत नमाज करती है। जो बंदा तय करके आया मैंने दाद नहीं देनी, वो बंदा हाथ उठा के दुआ दे दे मेरे आने का मकसद पूरा। ये मिंबर हुसैन के गिलाम में आता है, तुम में से हर आजाद को विलायत अली की कसम दे के कह रहा हूं, जिस कर का चूल्हा अली बादशाह की जूती के सदके में जलता है। जिस बंदे को उम्मीद है रिज़्क़ नजब से और शान से करबला से आती है, और मैं जी रहा हूं विला के हाथ पे बैयत नमाज करती है, अली अमीर की मिदहत नमाज करती है। जिस बंदे को उम्मीद है 3 टाइम की रोटी मुझे अली बादशाह की नालैन के सदके मिलती है, वो बंदा हाथ उठा के मौला अली बादशाह की विलायत को सलाम करे। विला के हाथ पे बैयत नमाज करती है, अली अमीर की मिदहत नमाज करती है। और जो राग के बुग़्ज़, जो राग के बुग़्ज़, जो राग के बुग़्ज़ अली की नमाज पढ़ता है, उसी की शक्ल पे लानत नमाज करते हैं। इन हाथ उठा के बोलो हैदरी। माशाल्लाह आप जी देखे ना, विलायत अली पढ़ी है तो मुझे न्याज भी मिली है। ये है मेरे मौला की विलायत के मुझसे। जो राग के बुग़्ज़ अली की नमाज पढ़ता है, उसी की शक्ल पे लानत नमाज करती है। आबिद भाई तकरीबन 9 शबान से मेरी एक जश्न पड़े, वहाँ से तबीयत थोड़ी नासाज थी, तो कल मैं मेडिसिन लेके यहाँ मून भाई से माजरत भी करने लगा था, लेकिन मून भाई ने कहा कि आ जाइए, बड़ा मसला है। तो 4 मिसरे और पढ़ता हूँ, विलायत अली पे पढ़ूंगा। आप विलायत पे बड़े खूबसूरत बोलते हैं। जब से सुना है मर के मिलूंगा अली से मैं, इधर वाला महला, जिस बंदे का अकीदा है मेरे मरने के बाद अली बादशाह मुझे ज़ियारत करवाएंगे। अच्छा एक मौला अमीर कायनात वक्त के इमाम का खुतबा मेरे जहन में आ गया, तो मैं पढ़ता चला जाऊं। तो कल ही मैं किताब में पढ़ रहा था, एक मैं किताब का भी नाम मेरे जहन में नहीं है, किताब में पढ़ रहा था मैं। शहजादी कौनैन ने बेटे जिसने वक्त के इमाम की ताकत का अंदाज़ा लगाना हो, अब पहली मर्तबा ये पढ़ने लगा हूँ, वो जहन में आगे पढ़ता हूँ।
वक्त के इमाम की ताकत का अंदाज़ा जिसने लगाना हो ना, जनाब शहजादी कौनैन ने दरबार वाले खुतबे में बताया है कि जिसने मेरे बेटे की ताकत का अंदाज़ा लगाना है वो मैं आज खुतबे में बता के जा रही हूँ, वो आज मैं खुतबे में बता के जा रही हूँ। वो खुतबे में बताया, वक्त के मलऊन को मुखातिब होकर जनाब सैयदा ने कहा कि तू वक्त के घोड़े के नाके पे बैठ, अब मुझे दाद ना भी ना, मैं राजी हूँ। वक्त के घोड़े के नाके पे बैठ और इसे दौड़ा, इसे दौड़ा, इसे दौड़ा, अब मुझे दाद ना देंगे तो मैं पढ़ता रहूँगा। इसे दौड़ा, वक्त के घोड़े के नाके पे बैठ, इसे दौड़ा, इसे दौड़ा, इसे दौड़ा, इसे दौड़ा, इतना दौड़ा और मेरे कायम की हुकूमत से निकल के दिखा, और मेरे कायम की हुकूमत से निकल के दिखा। जब से सुना है मर के मिलूंगा अली से मैं, मेरा मौजू कल भी अली था, आज भी अली है। अली वाजिब है, अली वाजिब है, ओजिब है, अली वाजिब नहीं ओजिब है। मैं एक जगह पढ़ने लगा, सादकाबाद के आगे भोंग शहर है, वहाँ पे मैं पढ़ने लगा तो मैंने बिलाल का थोड़ा बहुत तज़किरा किया, तो हम थोड़ा डर के मारे थोड़ा वाज़े नहीं कर पाते ना, तो जैसे मैं पढ़ के निकला ना आबिद भाई, तो उन्होंने मुझे दो तीन बंदे थे, उन्होंने पकड़ लिया, बुजुर्ग थे अच्छे खासे। अच्छा, आप मौला के अजीम ज़ाकिर हैं, मिंबर पे आने वाली शख्सियत हैं, तो आप वाज़े किया करें, जो उसकी ज़बान में लुकनत थी ना, उसकी वजह से उसको नहीं रोका गया था, अली वलीउल्लाह की वजह से रोका गया। मैंने कहा ठीक है, हक यही है, लेकिन मुझे आपने इतनी खूबसूरत दाद दी तो अली वाजिब नहीं ओजिब है। जब से सुना है मर के मिलूंगा अली से मैं, बंदा ना बोले, अकीदा भी मैच हो फिर भी ना बोले, लाहौर वल मलका की दहलीज पे जाके माथा टेक के जबान से मुहारी दे के जो ज़ाकिर खैरात में मांगी उस पर नाज करने का हक ही नहीं बनता। आपने दाद देनी है, मुझे इन मिसरों पर दाद देनी है। पहले आपको मैं कहता रहा, आप मुझे दाद ना भी दे मैं राजी हूं, इन मिसरों पर दाद चाहिए। जब से सुना है मर के मिलूंगा अली से मैं, वल्लाह तब से मौत का खतरा चला गया। जब बंदा तशाहुद में अली वलीउल्लाह पढ़ता है, उस बंदे पर वाजिब नहीं ओजिब बोलना। जब से सुना है मर के मिलूंगा अली से मैं, वल्लाह तब से मौत का खतरा चला गया। इन मिसरों पर मुझे मेरी पढ़ाई पर मुतमईन हो गया, मुझे दाद ना भी दे मैं राजी हूँ। जब से सुना है मर के मिलूंगा अली से मैं, वल्लाह तब से मौत का, वल्लाह तब से मौत का, वल्लाह तब से मौत का खतरा चला गया। वो दोनों ही जब अली है, दोनों ही जब अली है, दोनों ही जब अली है, आप मुझे दाद ना देंगे तो मैं पढ़ता रहूंगा। दोनों ही जब अली है, दोनों ही जब अली है, दोनों ही जब अली है, अपनी नवाज से तूने अली निकाला था, अल्लाह चला गया। इन हाथ उठा के बोलो हैदरी। बस इज्जत भी बड़ी थी तो मुसीबत भी बड़ी थी। आबाद किस तरह ये सहन फातिमी हुआ, न जाने किसकी लगी नजर के ये खरमा। फकत एक जुमला पढ़ना है, ज्यादा टाइम आपका ले लिया मैंने। जो पर्देदार में आई बैठी होती है ना, जाकिर मौला के ये बता मेरे अली अकबर को बर्छी कैसे। बड़े मुखलिस अज़ादार तशरीफ फरमा है, इन इलाकों में बहुत कम आते हैं, लेकिन पढ़ने का सुकून मिलता है। वल्लाह बखुदा मिंबर पे खड़ा हूँ, झूठ बोलने वाले पर खुदा की लानत है। बड़ा सुकून मिलता है, बड़ा मुतमईन होकर पढ़ता हूँ, क्योंकि यहाँ पर वो चेहरे मेरे सामने तशरीफ फरमा दे जिनकी सारी जिंदगी आज़ादारी में गुजर गई। देखिए अभी मैंने एक जुमला पढ़ा है, आंसू आ गए आंखों में। बड़ी दूर से आती हैं और देर से जाती हैं। जब मजलिस हुसैन से फ्री हो के हम घर वापस जा रहे होते ना, भाई पाक सैयदा दरवाजे में खड़ी होके एक हाथ ऐसे रखती हैं, एक हाथ अपना ऐसे रखती हैं, आप का शुक्रिया अदा कर रहे थे। आप मेरे उन बेटों को रोने आए हो जिन्हें आज तक बहनें न रो सके। अजरकुम मिन सैयदा, अजरकुम मिन सैयदा, आप मेरे उन बेटों को रोने आए हो जिन्हें आज तक बहनें न रो सकी। अल्लाह ने कफन भिजवाया जिब्राइल को। जिब्राइल जी रब्बे जलील, ये कफन है, जाके मोहम्मद मुस्तफ़ा को दे दो। ये कफन है, जाके मोहम्मद मुस्तफ़ा को दे दो। को इसके 5 टुकड़े कर दे, अपना रख ले, बतूल को दे दे, अली को दे दे, मौला हसन को 2 दे दे। मोहम्मद मुस्तफ़ा ने कफन को लिया, कफन के 5 टुकड़े किए, अपना रख लिया, बतूल को दे दिया, अली को दे दिया,
मौला हसन को 2 दे दी। अगला जुमला मातम का है, मौला हसन को 2 दे दिए, कफन भी खत्म, अब काफूर भी खत्म। बेटी बाबा के करीब आकर, बाबा अल्लाह ने कफन भिजवाया है, आपने अपना रख लिया है, मुझे दे दिया है, अली को दे दिया है, मौला हसन को 2 दे दिए, क्या मेरा हुसैन किसी का कुछ नहीं लगता? अजरकुम मिन सैयदा, अजरकुम मिन सैयदा, क्या मेरा हुसैन किसी का कुछ नहीं? मैं मातम करता करता मर भी जाऊं तो हक अदा ना हो। बेटी बाबा के करीब आ गई, बाबा अल्लाह ने कफन भिजवाया है, आपने अपना रख लिया है, मुझे दे दिया है, अली को दे दिया है, मौला हसन को 2 दे दिए, क्या मेरा हुसैन किसी का कुछ नहीं लगता? क्या मेरा हुसैन किसी का कुछ नहीं लगता? अच्छा बाबा, आप मेरे बच्चों से बचपन में प्यार करते थे, आप कहते थे हसन अमीर है, हुसैन गरीब है। मोहम्मद मुस्तफ़ा ने बेटी को उठाया, बेटी को सीने से लगा के कहने लगे, मेरी बेटी, कफन उसे देते हैं जिसको कोई लाश उठाने वाला हो, कफन उसे देते हैं जिसकी कोई लाश उठाने वाला हो। बड़े मुखलिस आज़ादात तशरीफ फरमाए, कफन उसे देते हैं जिसकी कोई लाश उठाने वाला हो, कफन उसे देते हैं जिसकी कोई कब्र बनाने वाला हो, कफन उसे देते हैं जिसका कोई जनाजा पढ़ाने वाला हो। अच्छा बाबा, आप मेरे बच्चों से बचपन में प्यार करते थे, आप कहते थे हसन अमीर है, हुसैन गरीब है, हसन अमीर है, हुसैन गरीब है। तब मैं समझती थी आप लाड में कह रहे, आज मुझे यकीन हो गया है, आपने अमीर बेटे को 2 कफन दे दिए, गरीब को कुछ नहीं दिया। अजरकुम मिन सैयदा, अमीर बेटे को 2 कफन दे दिए, गरीब को कुछ नहीं दिया। अम्मर बाबा के मुंह से जुमला आप कह मेरे मुर्शद हुसैन बादशाह ने सुना, आप कह मेरे मुर्शद हुसैन बादशाह सेने तदहीर में आया, छोटे सा मामा उतार के सेने तदहीर में फेंका, अपने आप से कह रहे, मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ, और मुझे कफन कोई नहीं देगा, और मुझे काफूर कोई नहीं देगा, और मेरी लाश उठाने वाला कोई नहीं होगा, और मेरी कब्र बनाने वाला कोई नहीं होगा, और मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ। बहन भैया के करीब आके, तो भैया आप परेशान क्यों होते हैं? जिस दिन आपके पास कफन हुआ, मैं अपनी चादर दूंगी। और चीख निकली इमाम मजलूम करबला की। आप कर मेरे मुर्शद हुसैन बादशाह ने बहन को उठाया और बहन को सीने से लगा के कहने लगे, मेरी बहन दुआ कर, जिस दिन मेरे पास कफन ना हो, तेरे पास चादर हो। अली की ज़ादार बैठियां आपका पुरसुन। बिस्मिल्लाह।